Hello, dears lovers in study or literature. Good morning. Today we are going to discuss a literary figure, hyperbole. And when we come to this term compositionally, etymologically, that means hyper. Hyper means above or beyond. And bali means throw. And the word itself says to throw very high, compositionally. But literally, the meaning to this word is exaggerate. Exaggerative language to express in the stream of the exaggeration. When we have taken the term compositionally, now let us come to define. And when we try to define this term, that means this in a literature figure in which an idea, thought represented very exaggeratively. Either the lesser, better, or bigger actually as they are. यदि हम हाइपरबोली की साहित्य की दृष्टि से बात करें तो ये एक ऐसा फिगर है जिसको किसी भी विचार को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को अतिशयोक्ति के माध्यम से बताया जाता है। अब बात यह आती है कि इसका प्रयोग साहित्य में किस पर्पज से होता है। Why in literature hyperbole is applied? Then answer is very clear. Essentially for the purpose of emphasis. Though there are very other such terms or figures, but here it is the main weapon to emphasize the idea, the thought, the action. And since our ancient literature, time to time, period to period, writer to writer, it's applied. And as a Homer, Horace, here in England by Chaucer, Shakespeare, Milton, and later on in 17th century or the modern, throughout applied. When we try to exemplify as per the definition, परिभाषा के अनुसार यदि हम इसे समझने का प्रयास करें, एक और बात, क्योंकि हम एग्जाम की दृष्टि से मिनिमम कम से कम शब्दों के माध्यम से क्रेमिंग बात करना चाह रहे हैं ताकि आपको इंफॉर्मेटिव अपडेशन हो, इंफॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग बढ़े आपका, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्वेश्चंस को करेक्टली, एक्यूरेटली फेस कर सको। ज्यादा हम नहीं करते हुए सीधा बहुत शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं। हम यदि एग्जाम्पल लेके समझें तो एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे कहे जा सकते हैं। आप देखिए, हम व्यवहारिक जीवन में कम प्रैक्टिकल लाइफ में, बोलचाल में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट
एग्जैजरेटिव लैंग्वेज का स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। और वही अप्लाइड इन लिटरेचर, बोलचाल में अपनी बात पे जोर देने के लिए सेंटेंस जनरली हम सुनते हैं, आइदर 1 or 2 टाइम स्पीकर एड्रेसेस द लिसनर, बट थर्ड टाइम स्पीकर सेज, 1-2 बार स्पीकर लिसनर को एड्रेस संबोधित करता है। नहीं सुनने पर आपने देखा व्यवहारिक जीवन में वो ये बोलता है, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है। That means here as if the speaker were calculating very first and second one, और दूसरी बात ये 1-2 बार, 2-4 बार, 10 बार कहा, लेकिन उसने जो कहा तो ये इस तरह का स्टेटमेंट, इस तरह की एप्लीकेशन इन लिटरेचर हाइपरबल, अतिशयोक्ति कहलाती है। इसका यदि दूसरा हम एग्जाम्पल लें इन लैंग्वेज, तो हम कह सकते हैं, यदि कोई कहता है आई ऑफर यू 1000 अपोलॉजीज, मैं आपसे 1000 बार माफी मांगता हूं, दैट मीन्स हाइपरबोलिक। Ben Jonson in his poem to his beloved, this example will be very best one to clarify this term. And when he says to his beloved, drink me with thine eyes, here drink me with thine eyes. And very famous and well known hyperbolic line from John Donne from his poem, certain poem, Go and Catch a Falling Star. Ride 10,000 days and nights. These examples can be considered to clarify as per this figure. Now when we come to that why this is used, very clear, to emphasize the idea, thing or the article or the man. But when we also broadly take for the purpose of study and especially for the competitive purpose, then around and surround there are two such figures, and these are regarded very first contrary to this figure, and that is meiosis. Meiosis, that means listening. किसी भी व्यक्ति, वस्तु और विचार को इसके माध्यम से छोटे से छोटे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। बात वही है, लेकिन ये दूसरा तरीका है, ये इसके पैरेलल है, हाइपरबल के पैरेलल। हाइपरबल में सीधा किसी छोटी चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर बहुत बड़े तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन हाइपरबल के कंट्रेरी यदि हम बात कर रहे हैं तो उसमें पहला, सबसे पहला आया माइसिस, और माइसिस का इंग्लिश में यदि हम बात करते हैं लेसनिंग, और लेसनिंग को हिंदी में समझने का प्रयास करें, किसी भी बात को छोटे से छोटे, किसी भी विचार को छोटे से छोटे तरीके से प्रेजेंट करना।
और उसके लिए जैसे हम ये कह सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, प्रैक्टिकल एग्जाम के माध्यम से, फॉर एग्जाम्पल इट्स फ्लड, just flooded, just a flood gone, and a certain fellow says, one says, we had a little rain. That means this example will be for the purpose of meiosis. Other one also, litotes. And what does mean litotes? Litotes means understatement, and in that using negative words either for the purpose of positive, to present positively, but negative words are used, and not only negative words, that means two negative words at a time. And by example, when we come, he is not a bad singer. That means here in this sentence, not and bad. That means वह बहुत अच्छा सिंगर है। इस बात को बताने के लिए उसने दूसरा माध्यम नेगेटिव साइड से इस बात को प्रेजेंट किया। इसलिए लिटरेचर में ये ध्यान रखें, हाइपरबली के कंट्रास्टिक दीज टू, और हमने ये भी लिया कि इन दोनों का क्या अर्थ रहा। एक सबसे पहला कंट्रेरी में आपका फिगर जो आया वो है मायोसिस, और दूसरा लिटोटीज। एक और ये आता है कि हमारे इसी तरह से हाइपरबलिक सिमिलरिटी रखने वाले कुछ और इस तरह के फिगर्स हैं। हमें एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता, ये दोनों हमने मायोसिस, लिटोटीज, ये कंट्रेरी है हाइपरबल के। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है, ये कहा जा सकता है सिमिलर टू हाइपरबली, बट उसमें उनका जो रिप्रेजेंटेशन और एग्जैजरेशन का जो तरीका वो थोड़ा अलग है। और हम केवल मात्र उनके नाम को लेंगे, आपके लिए इतना पर्याप्त रहेगा, इसलिए ज्यादा उसको नहीं हम डिटेल में जाएंगे। उनके नाम इस तरह से होंगे। नंबर एक आपका सिमिलर, जो फिगर है उसमें ओवर स्टेटमेंट, इसको आपको सिंपल भी कहा जाता है, और ये यहां जब ओवर स्टेटमेंट कहा गया दैट मीन्स हाइपरबली, सिंपली जिस तरह से कहा जाता है, एग्जैजरेशन। दूसरा आक्सिसिस, नंबर दो आक्सिसिस। और आक्सिसिस में क्या होगा, आक्सिसिस में एग्जैजरेशन ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, एग्जैजरेशन ग्रेजुअली इंक्रीज, धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाता है, अतिशयोक्ति के तरीके से उसको डिस्क्राइब किया जाता है। हम बात करेंगे एडिनेशन, और एडिनेशन में आपका एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हाइपरबल दैट एक्सप्रेसेस इम्पॉसिबल, इसमें इम्पॉसिबल जो अचीव नहीं किया जा सकता, इस तरह का प्रेजेंटेशन होगा। एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन एक ऐसा हाइपरबल का दूसरा रूप होगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उस व्यक्ति वस्तु जिसको एग्जैजरेटिव रिप्रेजेंट किया उसको बढ़ाते जाएंगे। ये आपका एम्प्लीफिकेशन होगा।
और लास्ट एक और होगा पेरीफ्रेसिस। और पेरीफ्रेसिस का क्या मतलब होगा? यूजिंग एक्सेस वर्ड्स। यूजिंग एक्सेस वर्ड, हाइपरबोलिक पर्पस से बहुत सारे एक्सेस वर्ड को प्रयोग किया जाएगा, उसकी एक स्टेज लगा दी जाएगी, एक स्टार लगा दी जाएगी। तो देखा हमने सबसे पहले हाइपरबल फिगर, हाइपरबल्स मीनिंग above and through, that is analytical or compositional, but literal meaning exaggeration. To define when an idea or thought, action represented very exaggeratively, either it's lesser, bigger, or worse, but it's real, actual roles, actual forms, higher or lesser. हमने ये भी बात की कि ये क्यों यूज किया जाता है, तो उसका आया एम्फेसिस। फिर इसके कंट्रेरी दो टर्म हमारे पास आए और इसके सिमिलर फिगर्स जो इसी के ही रूप में है, हल्का माइनर उनमें डिफरेंस है। आई थिंक कि आपने हाइपरबल, कंट्रेरी टू हाइपरबल and a similar figures to hyperbole very well you have gone through and taken the meanings. It will be very helpful. Meet you next video. Thank you.